Hello students, so welcome to Infinity Learn by Sri Chaitanya, and today we'll be discussing a very important topic and a very interesting topic, that is cardiac cycle. कि जैसे हमने बहुत जोर दौड़ लिया या ऐसे मम्मी सोचो ढूंढ रही है, हमने कुछ कांड कर दिया है और हम दौड़ रहे हैं तो क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो फॉर द 24/7 हमारा हार्ट बीट करता रहता है. कभी लब डब साउंड करता है या कभी थोड़ा सा इमेजिनरी लेवल पे धक धक साउंड करता है. तो क्या होता है हार्ट में, कैसे ब्लड आता है, कैसे जाता है, तो कभी सोचा है इसके बारे में? तो चलो आज वही डिस्कस करते हैं. सो लेट्स इंट्रोड्यूस टुडेस टॉपिक, दैट इज द कार्डियक साइकिल. अंदर से कुछ ऐसा ही होता है, तो बस चलो देखते हैं कि असल में क्या होता है. सो फर्स्ट, व्हाट इज द कार्डियक साइकिल, होता क्या है? The sequence of events that occur during one complete heartbeat from the start of one heartbeat to the beginning of the next. मतलब कि सोचो जो लब डब साउंड आता है तो स्टार्टिंग ऑफ द लब टू द एंडिंग ऑफ द डब, इस टाइम फ्रेम में क्या क्या होता है हार्ट पे, चीजें कैसे ब्लड आता है आर्टरीज में, कैसे वेंट्रिकल से निकलता है, बीच में कौन से अपरेटस काम करते हैं, सब हमको जानना है ना. तो वही है कार्डियक साइकिल. सो वन कार्डियक साइकिल इक्वल्स टू वन लब डब. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर नीट पर्सपेक्टिव ऑल्सो, दैट वन कार्डियक साइकिल टेक 0.8 सेकेंड टू कंप्लीट. ठीक है, याद रखना ये टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड जस्ट लेट्स गेट इनटू अ वेरी क्विक रिकैप ऑफ द हार्ट. ये हमारा राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरिया, right ventricle, left ventricle. We know that through the vena cava, the deoxygenated blood comes into the right atria, from there the right ventricles, and it comes out through the aorta, comes out through the pulmonary arteries, right? And we know that the oxygenated blood through the help of the pulmonary vein comes into the left atria, into the left ventricle, and from there it comes out through the aorta. And beach mein here we have the bicuspid and tricuspid valves, and there also we have the semilunar valves and at the underneath of the ventricles, right? तो अभी चलो बात करते हैं कि कार्डियक साइकिल में क्या क्या सीक्वेंसेस होता है, क्या क्या होते हैं. सो जस्ट लेट्स क्लियर इट. तो कार्डियक साइकिल में 4 स्टेजेस आप सोच सकते हो. पहला है जॉइंट डायस्टोल. द नेम इटसेल्फ रेफर्स कि जॉइंट डायस्टोल में होता क्या है. जॉइंट मीन्स व्हाट, कि सब एक साथ, जैसे जॉइंट फैमिली होता है वैसा एक साथ. एंड डायस्टोल मीन्स व्हाट, डायस्टोल मीन्स द रिलैक्सेशन, राइट? द रिलैक्सेशन या रिलैक्स स्टेट, जो भी आप सोचो. So just imagine my hands as the heart. Now the pump portion are the arteries, the hand portion is the ventricle, the elbow portions think of them as the semilunar valves, and बीच का जो ये portion है wrist, think of them as the bicuspid tricuspid valve. Now what happens in the joint diastole is what, कि हमारे हार्ट के जो 4 chambers है, मतलब both the arteries and both the ventricles, they are in the relaxed state. matlab arteries, ventricles, they are open. So bicuspid tricuspid valve is also open. Semilunar valves are closed because there is no blood in the ventricle, so no pressure on the semilunar valves. Semilunar valves पे प्रेशर आएगा तभी वो ओपन होंगे. ठीक है, तो अभी प्रेशर नहीं है, सब रिलैक्स्ड है, तो एवरीथिंग इज ओपन. So blood comes into the artery, and from there, as the doors means the bicuspid tricuspid valves are open, so blood comes into the ventricle. But remember, only 70% of the blood, for example arteries में सोचो 100% blood filled है, but only 70% comes into the ventricle during the joint diastole. So what happens, 4 chambers are relaxed, both the arteries, ventricles, everything is relaxed. Then bicuspid tricuspid valves are open and semilunar are closed. See, the bicuspid tricuspid valves are open but the semilunar valves are closed. Blood comes from the artery to the ventricles, but only 70%. arteries से 70% blood ventricles में आ रहा है. But remember, this joint diastole stage takes 0.4 second to complete. So please remember, total cardiac cycle is equals to 0.8 second. Joint diastole ने ले लिया 0.4 second. अब बाकी का जो भी काम होगा, that will be happening in the remaining of 0.4 second, right? क्योंकि भाई 0.8 से अगर 0.4 तुम माइनस करोगे 0.4 ही तो आएगा, तो बाकी का जो भी है वो होगा ये जो बाकी के 0.4 सेकेंड्स है उसमें. तब देखते हैं इसके बाद क्या होता है. इसके बाद आता है आर्टेरियल सिस्टोल या आर्टेरियल डीपोलराइजेशन. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द
कॉन्ट्रैक्शन। अभी क्या होता है, हमने देखा कि जॉइंट डायस्ट्रल पे सिर्फ 70% ब्लड आर्टरी से वेंट्रिकल पे आया, बट रिमेनिंग 30% का क्या? तो सोचो जैसे हम कपड़ा धोने के बाद उसको निचोड़ते हैं ना, और बाकी का जो भी रिमेनिंग पानी उसमें रहता है वो भी आ जाता है, वही चीज यहां पर होता है। और ये काम कौन इंस्ट्रक्ट करता है? ये काम इंस्ट्रक्ट करता है एसए नोड। वो क्या करता है, सोचो वी नो ना कि समवेयर यहां पर हमारा एसए नोड है। अब एसए नोड बोथ द आर्टरीज, दैट एसए नोड टेल्स बोथ द आर्टरीज टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एसए नोड ने बोला चलो चलो आर्टरीज, बाकी 30% ब्लड भी हमको वेंट्रिकल को देना है, चलो कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। सो एसए नोड टेल्स द आर्टरीज टू कॉन्ट्रैक्ट। सो इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से निचोड़ने की तरह सोचो, बाकी का जो रिमेनिंग 30% ब्लड है वो भी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स के थ्रू वेंट्रिकल पे आ गया। ठीक है, तो अभी वेंट्रिकल के पास पूरा 100% ब्लड आ चुका है। सो व्हाट हैपेंस इन द आर्टरियल सिस्टोल? एसए नोड बोलता है आर्टरीज को चलो कॉन्ट्रैक्ट करो, 30% जो रिमेनिंग ब्लड था वो भी आ गया। सो अभी वेंट्रिकल के पास पूरा 100% ब्लड है। एंड रिमेंबर द आर्टरियल सिस्टोल टेक्स 0.1 सेकेंड टू कंप्लीट। ठीक है, सो अभी देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। आर्टरियल सिस्टोल के बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल या वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। सिस्टोल मींस व्हाट? कंट्रैक्शन। देखो वेंट्रिकल्स पे ब्लड आ गया, लेकिन वेंट्रिकल से भी तो अभी ब्लड निकलना चाहिए ना, अदरवाइज पूरे बॉडी में कैसे जाएगा? तो उसके टाइम पे क्या करता है, यहां पर काम करता है हमारा एवी नोड। पहले आर्टरियल सिस्टोल में कौन काम किया? एसए नोड। पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कौन काम करेगा? एवी नोड। वी नो कि समवेयर अराउंड हियर फॉर एग्जांपल द एवी नोड is present. Now AV node tells both the ventricles to contract. हमको पता है कि परकिंजी फाइबर्स है जिसके थ्रू वो इंपल्स जाता है वेंट्रिकल्स पे। तो अभी एवी नोड कहता है चलो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करो। आर्टरीज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है, हमने देखा, अभी वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो एट दैट सेम टाइम क्या होता है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया, आर्टरीज भी कॉन्ट्रैक्टेड है, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो गया। बट अभी वेंट्रिकल्स पे तो इतना प्रेशर आ रहा है कि ऐसे तो ब्लड फिल्ड है 100%, ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस प्रेशर की वजह से सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं। सो ब्लड कम्स आउट ऑफ द वेंट्रिकल। सो फिर से मैं बता रही हूँ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, पहले आर्टरीज कॉन्ट्रैक्टेड है, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किसने बोला? एवी नोड ने बोला कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रेशर आया बहुत ज्यादा, एंड बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स भी क्लोज्ड है, प्रेशर की वजह से सेमिल्यूनर वाल्व्स खुल गए, ब्लड वेंट्रिकल से निकल गया। ठीक है, कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली, प्लीज फोकस ऑन द वर्ड साइमल्टेनियसली, आर्टरीज ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सो इन द रिमेंबर वन थिंग, इन द वेंट्रिकुलर सिस्टोल two things happen simultaneously, that is, एक तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन हो जाते हैं, ब्लड निकल जाता है, बट एट द सेम टाइम आर्टरीज भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, सो अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, ब्लड निकल गया। तो फिर से हम देख लेते हैं, एवी नोड इंपल्स जनरेट करता है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, साइमल्टेनियस आर्टियल रिलैक्सेशन, मैंने जैसा बोला आर्टरीज ओपन हो गए बट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व्स आर क्लोज, एज यू कैन सी हियर, सी दिस वाल्व्स आर क्लोज हियर, राइट। सेमिल्यूनर वाल्व पे प्रेशर आया, सेमिल्यूनर वाल्व ओपन, ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट, सेमिल्यूनर वाल्व्स खुल गए, ब्लड फ्लोज आउट ऑफ द हार्ट, एंड दिस वेंट्रिकुलर सिस्टोल टेक्स प्लेस फॉर 0.3 सेकेंड। ठीक है, अभी देखो ब्लड हार्ट पे आ गया, फिर हार्ट से निकल भी गया, तो एक साइकिल तो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मुझे फिर से नया साइकिल स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर से पहले के पोजीशन पे आना पड़ेगा, है ना। सोचो मैंने रेस कंप्लीट कर दी, फिर से मुझे रेस पे दौड़ना है, तो मुझे तो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे आना पड़ेगा ना। जस्ट द सेम, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जॉइंट डायस्ट्रल, मतलब चारों चैम्बर्स रिलैक्स थे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड ओपन था, सेमिल्यूनर क्लोज था। तो अगर उसी पोजीशन में फिर से आना है तो हमने लास्ट पोजीशन क्या देखा कि आर्टरीज खुल गए थे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्टेड थे, बट नाउ हियर द वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हैपेंस। रीपोलराइजेशन मींस व्हाट, कि ये जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है इससे तुम जो ओपन फेज में जा रहे हो, ये जो ट्रांजिशन है उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन इज नीदर सिस्टोल नॉट डायस्ट्रोल, इट इज अ फेज, मतलब फेज ट्रांजिशन हम बोलते हैं ना, वैसा टाइप का कुछ समझ सकते हो। तो लास्ट में हमने क्या देखा कि आर्टरीज ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो चुके थे, बट वेंट्रिकल्स तब भी कॉन्ट्रैक्टेड है। तो अभी तो हमको आर्टरीज एंड वेंट्रिकल्स दोनों को खोलना है फिर से, क्योंकि हमको जॉइंट डायस्ट्रल स्टेज में वापस जाना है। तो यहां पर क्या होता है,
आर्टरीज ओपन है, कौन बंद है? वेंट्रिकल। तो हमको वेंट्रिकल को खोलना है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को खोलना है और सेमिल्यूनर को बंद करना है। तो क्या होता है यहाँ पर? सी, यहाँ पर आर्टरीज ओपन ऑलरेडी थे, वेंट्रिकल्स भी ओपन हो जाते हैं, उसके वजह से ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व है वो भी खुल जाते हैं। और एज यहाँ पर अभी वेंट्रिकल्स पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, तो सेमिल्यूनर वाल्व्स पे भी कोई प्रेशर नहीं है, तो वो भी बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर से सब रिलैक्स स्टेट पे आ गए, आर्टरीज खुल गए, वेंट्रिकल्स खुल गए, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड खुल गया, सेमिल्यूनर बंद हो गया। तो कौन सी स्टेज पे हम पहुंच गए? फिर से जॉइंट डायस्ट्रल स्टेज पे पहुंच गए, फिर से एक नया कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पर है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स, सेमिल्यूनर वाल्व्स आर क्लोज्ड, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड आर ओपन ड्यू टू प्रेशर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर से आर्टरीज में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रिलैक्स स्टेट में आ गए ना, जॉइंट डायस्ट्रल पे क्या हो रहा था? फिर से ब्लड आना स्टार्ट हो रहा था, वही होता है। ठीक है, एंड देयर द नेक्स्ट साइकिल बिगिंस, मतलब फिर से एक नया कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो गया। एक लबडब खत्म हो गया, अब नेक्स्ट लबडब की बारी। ठीक है, सो एज यू कैन सी आर्टरीज में ब्लड आना स्टार्ट हो गया, अब ये बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खोलना स्टार्ट होंगे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट पे आ गए, सेमिल्यूनर वाल्व्स भी क्लोज हो गए, तो फिर से जॉइंट डायस्ट्रल स्टेज पे पहुंच जाएगा, नया कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्डियक साइकिल। तो कितने स्टेजेस है? जॉइंट डायस्ट्रोल, आर्टियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर repolarization, right? And please remember all the times की कौन से में कौन सा टाइम लेता है, जैसे टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, बट जॉइंट डायस्ट्रोल 0.4 सेकेंड, द आर्टियल सिस्टोल कितना टाइम लेता है, उसके बाद वाला कितना टाइम लेता है। जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ अभी आप एक अच्छा सा पिक्चर देख लो, सी कितने अच्छे से यहाँ पर दिख रहा है कि कैसे एसए नोड इम्पल्स क्रिएट कर रहा है, कैसे एवी नोड इम्पल्स क्रिएट कर रहा है, कैसे आर्टरीज में ब्लड आ रहा है, कैसे फिर वहां से वेंट्रिकल्स पे आ रहा है थ्रू द ओपनिंग ऑफ द वर्ल्स। यू कैन सी कैसे वर्ल्स ओपन हो रहे हैं, वहां से कैसे अभी ब्लड बाहर पंप आउट हो रहा है। सो दैट्स अ वेरी लाइक गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, आई वुड से। So thank you very much for listening to this class. Thank you, and please read the cardiac cycle thoroughly. It's a very important and a very interesting chapter, and see you in the next classes, see you in the next sessions. And अगर आपको ऐसे videos और देखना है, so please follow us. Thank you so much. Bye bye. Till then, stay healthy, stay safe, and do study. Bye bye.